अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल दिस कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड. In previous video we were discussing about the lesson number 4, night. First of all, I am giving you some brief introduction about this poem. Night is one of the finest poems of William Blake. Ignoring the grammatical defects, we must appreciate how the poet brings his idea into our mind without any intricate reasoning. The nucleus of the poem lies in the idea that divine care and concern guards all innocent creature, and an eternal life of rich happiness awaits all of them. Night is there, but even the night does not put the innocent creature to harm, for there come to God sent angels to rescue and preserve them. This loveliness depends not merely upon the portrayal of the new word of overwalking angel, but also on the magnanimity and profundity of the poet's thought. The first stanza exposes a fine picture of blanched night. The simile renders the picture lovelier and more magnificent. The splendor in comparing the moon with the flower is more to be felt than expressed. The speaker bids farewell to the green fields and groves where the lambs had been grazing so long. The silent fields changed to become the carpet where angels trade softly, pouring blessings and joy on each bird and flower, as well as on each sleeping creature. They visit the silent nests of birds, caves of beasts, and protect them all. They charm into sleep those who weep, but they are not mighty Herculean angel. If they find some ferocious animals like the wolves or tigers howling for their prey, they stand apart and weep in sympathy for the innocent prey. They try their utmost to quench the thirst of the carnivores and keep the sheep harmless. But when the tiger or wolf turns ferocious and kills the innocent lamb, the angels take the souls of the innocent creature to the abode of God, where the newly arrived souls are out of all kind of danger. This new world is this new world is not a place of conflicts or disorder. There even the lions and tigers are pitiful and kind-hearted, and they condensed to guard the folds of sheep and lamb. In that immortal word of God, they sing in praise of God. His meekness and health repel the wrath and worldly sickness. In that immortal word of God, they sing in praise of God. His meekness and health repel the wrath and worldly sickness. This change of line into harmless animal is due to its immersion to the pure waters of life's river in heaven. After this wash in the pure water, his terrible mane will glitter like gold as he protects the fold of sheep there. The speaker starts by indicating that it is night time, the sun is descending in the west direction, and the evening star is shining bright. Evening star is another name for planet Venus. The birds have gone silent in their nests, that is, the birds have gone to sleep, and the speaker too should head towards his home. The moon has been compared to a flower to express its beauty. The speaker says that the moon sits high in heaven, smiling in delight during the silent night. The speaker then bids farewell to the day
daytime during which flocks of sheep and cattle graze on green fields and groves. The lambs nibble on the grass, and the angels visit the earth to bestow their blessing on every being, growing and sleeping under the bright sun and the shining moonlight. The speaker says that the angel looks inside the homes of every being, the birds' nest, to make sure they are warm, and the beast's cave to ensure their safety. If the angel finds some creature weeping, they put calm and sleep in their head and sit beside their beds, blessing them with peaceful rest. The angels weep when they find the tigers and wolves in distress with hunger and try to bless them with peace. If the tigers and wolves can find prey, the angels take the soul of the dead animal to heaven, providing them with the new life, a new world. So student, this is all about the introduction of this chapter. Now we move on to the exercise of this chapter. First one is vocabulary. Look up the meaning of these words in the dictionary. Use these words in sentence of your own. इन अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करें और इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. डिसेंडिंग, सीक, बोर, लाइट एंड नेस्ट. So these are the words, their meanings and their sentence. First one is descending, गरूब होता हुआ. Sentence is the sun is descending in the west. सूरज मगरिब में गरूब हो रहा है. Seek, तलाश करना. We should be ready to seek knowledge. हमें इल्म हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए. बोयर, सायादार दरख्तों वाली खुशगवार जगह. So the sentence is I like to visit Boer in the spring season. मुझे मौसम बहार में सायादार दरख्तों वाली जगह पर सैर के लिए जाना पसंद है. Delight, खुशी. And the sentence is I read your letter with great delight. मैंने तुम्हारा ख़त बड़ी खुशी के साथ पढ़ा. Nest, घोंसला. And the sentence is sparrows lay their eggs in the nest. चिड़ियाँ अपने अंडे घोंसलों में देती हैं. नेक्स्ट वन, रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. ए क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन सवालात के जवाबात दें. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट. ये पोइम या ये नज़म किसके मुतालिक है. एंड द आंसर इज़ दिस पोइम इज़ अबाउट नाइट. ये नज़म रात के मुतालिक है. Next, second question, when do the stars shine? सितारे किस वक्त चमकते हैं. So the answer is the stars shine when the sun descends in the west. सितारे उस वक्त चमकते हैं जब सूरज मगरिब में गरूब हो रहा होता है. Next one is third question, what does the night bring for us? रात हमारे लिए क्या लाती है. So the answer is the night brings for us different kinds of delight. रात हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खुशियाँ लेकर आती है. फोर्थ क्वेश्चन, what makes the moon happy? चाँद को कौन सी चीज़ खुश करती है. So the answer is the night makes the moon happy. रात चाँद को खुश करती है. फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, why are the birds silent in their nests? परिंदे अपने घोंसलों में खामोश क्यों हो जाते हैं. सो द आंसर इज़ द बर्ड्स आर साइलेंट बिकॉज दे स्लीप इन देयर नेस्ट्स. परिंदे रात को इसलिए खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने घोंसलों में सो जाते हैं. नेक्स्ट, बी क्वेश्चन also related to the comprehension. Figurative language. Read the poem and pick out the use of simile. नज़म को पढ़ें और उसमें से तशबीह वाले अल्फाज जो हैं उनको इकट्ठा करें. फ़र्स्ट ऑफ ऑल बेटा सिमिली होता क्या है. सिमिली ये उसकी डेफिनेशन है. अ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू से दैट समबडी स्विम्स वेल, आई कैन से ही और शी स्विम्स लाइक अ फिश. बेटा इसके अंदर दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, आपस में उनका मवाजना किया जाता है और दो अल्फाज के ज़रिए किया जाता है, या फिर लाइक या फिर एज़. इन दो वर्ड्स के ज़रिए किया जाता है. मिसाल दी गई है कि अगर मैं कहती हूँ कि
मैं तैरना चाहती हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी कि ही और शी स्विम लाइक अ फिश, कि वो जो है मछली की तरह तैरती है। बिकॉज अ फिश स्विम्स वेल, क्योंकि एक मछली जो है वो बेहतर तरीके से तैरती है। देयर आर टू बेसिक पैटर्न डैट यू कैन यूज़ फॉर कंपैरिजन। यहाँ पर दो तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हम मुवाजना कर सकते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न है? पैटर्न 1 है लाइक के ज़रिए, और पैटर्न 2 कौन सा है? एज के ज़रिए। लाइक के ज़रिए हम कैसे करेंगे बेटा? वर्ब लिखेंगे, फिर लाइक और फिर नाउन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, शी स्विम्स लाइक अ फिश। देखें, शी जो है सब्जेक्ट है, स्विम क्या है? वर्ब है। स्विम क्या है? वर्ब है। फिर उसके बाद लाइक आ गया, और फिश क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों वर्ड जो हैं एक दूसरे के आगे पीछे, पहले वर्ब, फिर लाइक और फिर नाउन। हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ही वॉक्स लाइक अ डक। वॉक क्या है? वर्ब है। लाइक आ गया, और फिर डक जो है वो नाउन है। शी एक्ट्स लाइक अ फूल। एक्ट्स क्या है? ये वर्ब है। लाइक आ गया, फिर उसके बाद फूल क्या है? नाउन है, ठीक है। वो बेवकूफ़ों की तरह एक्ट कर रहा है या करती है, सॉरी। और दूसरा पैटर्न क्या है? एज का, कि एज के ज़रिए हम कैसे इसको करते हैं सिमिली के ज़रिए। तो इसकी एग्जांपल क्या है? पहले एज लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव आएगा, पहले एज फिर एडजेक्टिव, फिर एज और फिर नाउन, ठीक है। तो ऐसे, जैसा कि एग्जांपल है, ही इज़ एज टॉल एज अ जाइंट। किसी के साथ हमने उसको क्या करना है? मुवाजना करना है कि जाइंट क्या होता है? बड़ी, मतलब क्या कह लो, द्यो की तरह की कोई चीज़, ठीक है। वो इतना बड़ा है जैसे कि द्यो। देखें यहाँ पे एज आया, फिर एडजेक्टिव आ गया क्वालिटी, फिर एज आ गया और फिर नाउन आ गया। सेकेंड एग्जांपल देखें। शी इज़ एज फास्ट एज अ रॉकेट। एज आ गया, फिर फास्ट एडजेक्टिव आ गया, फिर एज आया और फिर रॉकेट। वो इतना तेज़ है जितना कि रॉकेट। ही इज़ एज ग्रेसफुल एज अ स्वैन। वो हंस की मानिंद खूबसूरत है। ग्रेसफुल खूबसूरत, स्वैन हंस। तो वो किसकी मानिंद खूबसूरत है? हंस की मानिंद खूबसूरत है। देखिए, हमने यहाँ पे लाइक का यूज़ भी देखा और एज का यूज़ भी देख लिया। नेक्स्ट वन है सी क्वेश्चन। मेक योर ओन सिमिली। हाउ कुड आई से डैट समबडी डैश रन्स फास्ट। इसको यूज़ करते हुए हमने सिमिली बनानी है, तेज़ दौड़ना। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आमिर रन्स एज फास्ट एज अ हेयर। मैं रिपीट कर रही हूँ, आमिर रन्स एज फास्ट एज हेयर। आमिर जो है वो खरगोश की तरह तेज़ दौड़ता है। इज़ प्रीटी। इज़ प्रीटी को कैसे लेंगे हम सिमिली में? शी इज़ एज प्रीटी एज अ फेरी। वो परी की तरह खूबसूरत है। शी इज़ एज प्रीटी एज अ फेरी। जंप वेल। जंप्स वेल को कैसे लेंगे बेटा हम? ही जंप्स वेल लाइक अ मंकी। ही जंप्स वेल लाइक अ मंकी। वो बंदर की तरह उछलता है, ठीक है। इज़ स्ट्रॉन्ग। इसको हम अगर सेंटेंस में बनाएं सिमिली में तो कैसे बनाएंगे? जैन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ लाइन। जैन शेर की तरह मजबूत है, ठीक है। जैन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज अ लाइन। सेकेंड वन, हाउ कुड आई से डैट समथिंग। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सिमिली। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोइम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हमने इस समरी को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो क्या है, ये सब के सब वर्ड्स दिए गए हैं और इनको यूज़ करते हुए हमने इनको कंप्लीट करना है। द सन हैज़ डैश एंड द इवनिंग स्टार्स डैश इन द स्काई। द सन हैज़ सेट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेट। मैं नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है। सेट के ऊपर नंबर 1। इवनिंग स्टार्स इन द स्काई। इवनिंग स्टार्स shine in the sky. Second, birds take dash in their nests and people also dash to their home. Birds take rest in their
nests and the people also go to their home. यहाँ पे क्या आएगा? go to their homes. The moon looks like, यहाँ पे क्या आएगा? like a flower and it also dash the night time, enjoys the night time. ठीक है, इस तरीके से है. फर्स्ट वाले में सेट आएगा, सेकंड वाले में शाइन आएगा, थर्ड वाले में रेस्ट आएगा, फोर्थ में गो, फिफ्थ में लाइक और सिक्स वाली में इंजॉयज आएगा. तो इस तरह ये समरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट है बेटा ग्रामर. ग्रामर के अंदर दो चीज़ें दी गई हैं, प्रोनाउंस हैं और फिर पोजेसिव प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि मैं, हम, तुम, वो, ये, वो वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन. एक ऐसा प्रोनाउन जो कि मलकियत को जाहिर करता है, जैसा कि माइन मेरा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर्स उसका, देयर्स उनका, इट्स इसका. ठीक है. तो ये क्या करता है पोजेसिव प्रोनाउन? किसी भी चीज़ की मलकियत को जाहिर करता है और उसकी जगह पर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ए. हेयर इज़ द लाइन 4 of the poem. Encircle the pronoun and underline the possessive pronoun. हाँ जी, यहाँ पर बेटा एक लाइन दी गई है और उन्होंने कहा है कि जो प्रोनाउन है उसको सर्कल कर दें और जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन कर दें. ठीक है. तो ये जो माइन है ये तो है पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. और आई जो है ये क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. आई प्रोनाउन है और माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग अ सूटेबल पोजेसिव प्रोनाउन. यहाँ पर मुनासिब प्रोनाउन लगाकर, पोजेसिव प्रोनाउन लगाकर इनको कंप्लीट कर देना है. ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग. इट इज़ हिज. यहाँ पर क्या आएगा? हिज आएगा. फर्स्ट वाले में हिज आएगा. सेकंड है शी इज़ वेयरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस. इट इज़ हर्ज. ठीक है. शी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर होता है. और ही का क्या होता है? हिज होता है. थर्ड वन. आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच. इट इज़ डैश. मैंने एक कीमती घड़ी खरीद रहा हूँ. ये क्या है? मेरी है, माइन. तीसरा है माइन. फोर्थ वन. दे आर आयरनिंग देयर शर्ट्स. दीज आर डैश. वो अपनी कमीज़ें इस्त्री कर रहे हैं, ये उनकी हैं. तो यहाँ पर दे से क्या आएगा? दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर्स होता है. ठीक है. तो यहाँ पर देयर्स आएगा. फिफ्थ वन. यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक. इट इज़ योर्स. फिफ्थ में क्या आएगा? योर्स. तुम कहानियों की किताब उठाए हुए हो, ये तुम्हारी है. ठीक है. तो देख लें फर्स्ट वाले में हिज आएगा क्योंकि ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज होता है. सेकंड वाले में हर आएगा क्योंकि शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्ज होता है. थर्ड वाले में माइन आएगा क्योंकि आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है. फोर्थ वाले में देयर्स आएगा क्योंकि दे का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? देयर होता है. ठीक है. फिफ्थ वाले में योर्स आएगा क्योंकि यू का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है. नेक्स्ट सी क्वेश्चन also related to the grammar. preposition of time. ये सारी के सारी वो prepositions हैं जो कि टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसा कि इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त, इन द आफ्टरनून दोपहर के वक्त, इन द इवनिंग शाम के वक्त, ऑन सैटरडे हफ्ते के दिन, ऑन संडे मॉर्निंग इतवार के दिन सुबह, ऑन मंडे पीर के दिन, एट 5 AM सुबह के 5 बजे, एट 2 o'clock 2 बजे, एट नाइट रात के वक्त. ये सारी क्या है बेटा? प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. ठीक है. टाइम के लिए इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए हमने क्या किया, इन का यूज़ देखा है. यहाँ पर ये सब में क्या बताया गया है? इन का यूज़. यहाँ पर हमने ऑन का यूज़ देखा है और यहाँ पर हमने एट का यूज़ देखा है.
नेक्स्ट ई क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ सूटेबल प्रेपोजिशन। इनको फिल करना है प्रेपोजिशन के ज़रिए। माजिद इज़ कमिंग बैक डैश मंडे। क्या है यहाँ पर बेटा? यहाँ पर आएगा ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे। सेकेंड, शी प्लेज डैश द आफ्टरनून। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या आएगा? शी प्लेज इन द आफ्टरनून। यहाँ पर आएगा इन। यहाँ पर सेकंड वाले में इन आएगा। थर्ड वन, देयर प्लेन विल अराइव डैश 3 o'clock। तो यहाँ पर आएगा एट 3 o'clock, ठीक है। फोर्थ वन, ही टेक्स लेसन्स डैश संडे, ऑन संडे। यहाँ पर ऑन आएगा। फिफ्थ वन, यू कैन सी मी डैश 7:30 डैश द इवनिंग। यहाँ पर एट आएगा, एट 7:30, और यहाँ पर इन आएगा, इन द इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? इफ़ समथिंग इज हैपनिंग नाउ वी यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर कोई चीज़ अभी हो रही है तो उसमें के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। दिस टेंस इज फाउंड बाय यूजिंग 2 components, द वर्ब बी इन द प्रेजेंट टेंस एंड द ing फॉर्म ऑफ वर्ब आई एम रीडिंग अ बुक। हाँ जी, तो यहाँ पर बी जो है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाएगा, और ing जो है उसकी किसके लिए? फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए यूज़ किया जाएगा साथ, जैसा कि आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो पास्ट और फ्यूचर के दरमियान में जो काम हो रहा होता है, यानी कि जो अभी मुतलका हो रहा है, वो प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आई एम डूइंग, अभी हो रहा है। नेक्स्ट ई क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और ग्रामर। आई कांट कम आई डैश माई लेसन, ठीक है। तो यहाँ पर लर्न है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो हम क्या करेंगे? आई कांट कम, आई एम लर्निंग माई लेसन। आई के साथ एम आएगा और लर्न के साथ ing लगा देंगे तो लर्निंग आ जाएगा। आई एम लर्निंग माई लेसन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट यू डू मॉम इज़ वॉचिंग फॉर यू। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट आर यू डूइंग मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू। थर्ड वन, लुक माई कैट प्ले। तो हम यहाँ पर प्ले की जगह पर कैट जो है वो सिंगुलर है, तो हम कहेंगे लुक माई कैट इज़ प्लेइंग। प्ले और साथ ing इज़ प्लेइंग। फोर्थ वन, ही डैश हिज होमवर्क। तो डू के साथ क्या आएगा? ही जो है सिंगुलर है तो ही इज़ आएगा, ही के साथ क्या आएगा? इज़ आएगा, और डू के साथ जब हम ing लगा देंगे तो ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। फिफ्थ वन, लिसन डैट गर्ल क्राई। तो जब हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? डैट गर्ल इज़ क्राइंग, इज़ आ जाएगा और साथ में क्राइंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ, मेक क्वेश्चंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, शी इज़ हैविंग अ पार्टी, इज़ शी हैविंग अ पार्टी। बेटा यहाँ पर सिंपल टेंसेस दिए गए हैं, इनको हमने इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्रों में चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल, वी आर वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। तो हमने आर को स्टार्ट में ले जाना है, इस आर को कहाँ ले जाना है? स्टार्ट में, ठीक है। हम कहेंगे आर वी वेटिंग फॉर द बस, और लास्ट पे क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। सेकंड, शी इज़ गोइंग टू वर्क। जब हम इज़ को उठाकर स्टार्ट में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? इज़ शी गोइंग टू वर्क, और लास्ट पे क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट थर्ड वन, ही इज़ राइडिंग अ बाइक। इसी तरह इज़ को उठाकर कहाँ ले आएंगे? स्टार्ट में। इज़ ही राइडिंग अ बाइक, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फोर्थ वन, वी आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। तो आर को उठाकर स्टार्ट में ले आए, आर वी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, और साथ में क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ वन, शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर। तो यहाँ पर इज़ स्टार्ट में, इज़ शी कुकिंग मटन फॉर सपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिक्स वन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल।
आर उठाकर स्टार्ट में ले आएंगे, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, और लास्ट पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, कि हम चीज़ों को अदा कैसे करते हैं, तलफ़ुज़ उनका कैसे होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स हैं दिए गए हैं, हमने इनको प्रोनाउंस करके बताना है कि कैसे। हेल, हेल, लेट, लेट, लेटर, लेटर, सेल, सेल, टेल, टेल, टेस्ट, टेस्ट्स। एच क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर दो दो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इनमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट वन, आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस, तो यहाँ पर आएगा सीट, SEAT, सीट। ठीक है, मुझे बस में प्रॉपर सीट नहीं मिली। सेकेंड वन, अ मस्किटो डैश मी लास्ट नाइट, अ मस्किटो बिट मी लास्ट नाइट। थर्ड वन, माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर सपर। ठीक है, फोर्थ वन, माई ग्रैंड मदर डैश स्टोरीज, टेल्स stories. Fifth one, Saad dashed the ball and scored the goal. Saad hit the ball and scored the goal. Sixth one, a dash sails over the water. A ship sails over the water. Next, B question, write a paragraph about 50 to 60 words on night. नाइट के रिलेटेड पैराग्राफ लिखना है और उसके अंदर ये क्वेश्चंस होना लाजमी, मतलब इनका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट वन, व्हाट डज इट लुक लाइक, रात कैसी दिखती है। वेयर डज द सन गो, सूरज कहाँ जाता है। व्हाट डू अपीयर इन द स्काई, चांद के ऊपर क्या रोशन नमूदार हो जाता है। व्हाट डू बर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल डू, रात के वक्त परिंदे, जानवर और इंसान लोग क्या करते हैं। व्हाट इज़ वन बैड थिंग अबाउट नाइट, रात के वक्त एक बुरी चीज़ क्या है। व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट नाइट, रात के मतलब कोई एक अच्छी चीज़ क्या है। सो द आंसर और पैराग्राफ इज, द इवनिंग अप्रोचेज द सन सेट्स इन द वेस्ट, रात आती है, शाम जैसे ही आती है सूरज जो है वो गरूब हो जाता है। ठीक है, द इवनिंग स्टार बिगिंस टू शाइन इन द स्काई, जो शाम का सितारा है वो आसमान पर चमकने लग जाता है। बर्ड्स गो टू देयर नेस्ट एंड पीपल टू देयर हाउसेज, परिंदे जो अपने घोंसलों को चले जाते हैं और लोग अपने घरों को चले जाते हैं। दे आर साइलेंट, वो खामोश हो जाते हैं। ठीक है, डार्कनेस प्रिवेल्स एवरीवेयर, हर तरफ तारीकी छा जाती है। सून द मून अपेयर्स इन द स्काई, अचानक या जल्द ही चांद जो है आसमान पर नमूदार होता है। विद इट्स प्लेजेंट ग्लोज, अपनी भरपूर या खुशगवार रोशनी के साथ। देयर स्टिलनेस एंड साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह सकूत और खामोशी होती है। तो हमारे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट वन बेटा, ग्लोसरी। ग्लोसरी के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं चैप्टर से रिलेटेड। बोयर, प्राइवेट रूम, डिलाइट, समथिंग और समवन दैट गिव्स ग्रेट प्लेयर, डिसेंडिंग, मूविंग और कमिंग डाउन और डाउनवर्ड्स, हेवन, जन्नत, पैराडाइज, नेस्ट, घोंसला, अ स्ट्रक्चर बिल्ड बाय बर्ड्स, सीक, देखना, लुक फॉर समवन और समथिंग, शाइन, चमकना, बी ब्राइट, गिव आउट लाइट्स, साइलेंट, खामोशी, फ्री फ्रॉम नॉइज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बेटा हमने इसके अंदर जितने भी ग्रामर पोर्शन किया है, वोकेबलरी की है, या जितने भी कॉम्प्रीहेंशन किए हैं, आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तरह तैयारी हो सके। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। शुक्रिया।